Good morning, students. Welcome to the class. I hope the studies must be going well and you all must be safe in your houses. So, students, today we will read about the equatorial region. Now, the equatorial region falls in the torrid zone. Equatorial region जो है वो torrid zone में आता है और वहाँ पे hot wet climate रहता है पूरे साल. इस रीजन में the region is found, ये रीजन पाया जाता है इक्वेटर के दोनों साइड्स में. It lies between the tropic of Cancer and tropic of Capricorn. This is a tropic of Cancer and this is a tropic of Capricorn. If we look at the map, अगर हम मैप को देखते हैं, we will see that the places and continent, जो places हैं, जो continents हैं, सब इक्वेटोरियल रीजन के अंडर में ही आती हैं. Now, first is South America. All of you can see where is South America. South Atlantic. First of all, first is South America. South, North America, North Pacific. This is Africa, South America. South America also lies in between the equator, and this is Africa, South Africa. And Southeast Asia is South America is here, and Africa is here, and where is Southeast Asia is this one. So all the continents lies between the equator and Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Now, what is Democratic Republic of the Congo? The Democratic Republic of the Congo को पहले कहा जाता था जायर, जो पढ़ता है इक्वेटोरियल रीजन में ही पढ़ता है ये. और वी विल बी रीडिंग अबाउट द वेरियस, अब हम इसके अलग अलग फीचर्स और कंट्री के बारे में पढ़ेंगे. नाउ लोकेशन कहाँ पे है? द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. दिस हेयर यू कैन सी स्टूडेंट्स, द मैप is given here, and this is a democratic republic of the Congo, and located in the Central Africa. ये Central Africa में पाया जाता है. It is the second largest country of Africa. ये अफ्रीका का second largest country है अल्जीरिया के बाद. अल्जीरिया पहले लार्जेस्ट कंट्री था, अब अल्जीरिया, अब अफ्रीका सेकंड है. द इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. जो इक्वेटर लाइन है वो पास हो रही है नॉर्दर्न पार्ट से कंट्री के. द लार्जेस्ट सिटी किंशासा इज द कैपिटल. इसकी जो कैपिटल है वो है Kinshasa is the capital. The Democratic Republic of the Congo is surrounded by 9 countries. जो Democratic Republic है कॉन्गो का वो 9 countries से बंधा हुआ है, surround है. Let us see the neighbor of the country of this map. See, this is the Central African Republic map, and in the side of the map there is the West Republic of the Congo, South Angola and Zambia, North Central African Republic, and East Uganda, Rwanda, Burundi and Tanzania. So these are the countries which are surrounded by Democratic Republic. Now, geography. The Democratic Republic of the Congo, Democratic Republic Congo का has an area, उसका एरिया है 9,05,354 स्क्वायर मील्स. मीन्स इतना उसका किलोमीटर है. द वेस्टर्न टिप है कंट्री का इज टच्ड बाय द अटलांटिक ओशन. जो वेस्टर्न टिप है वो अटलांटिक ओशन से टच मिल रहा है. द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ कॉन्गो, और कंट्री जो है वो कॉन्गो रिवर बेसिन पे है, उसी के पास है. द रिवर कॉन्गो, दिस इज अ कॉन्गो रिवर कॉन्गो इज द मेन फिजिकल फीचर ऑफ द कंट्री. इस कंट्री का मेन फिजिकल फीचर है कॉन्गो, जो कि कवर करता है ऑलमोस्ट पूरी कंट्री, होल कंट्री को. द रिवर बेसिन इज अ वास्ट लो लाइंग एरिया. जो रिवर बेसिन है वो बहुत बड़ी और बहुत नीचे लो लाइंग एरिया है, जो सराउंडेड है माउंटेन्स और प्लेट्यूज, मतलब उसके बीच में है, जिसको बोलते हैं हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज. हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका किसके बीच में है? माउंटेन्स और प्लेट्यूज के बीच में. नाउ द रुवेंजोरी रेंज लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट. ये जो आपका रुवेंजोरी लेन है, आप इस मैप में देखिएगा, यू कैन फाइंड आउट इन दिस मैप. दिस लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट, एंड द मिटुम्बा माउंटेन रेंज, it lies in the southeast. Margarita Peak
जो कि हाईएस्ट पीक है इन दीज माउंटेन्स एट 16,795 फीट और 5,119 meters. The Shaba Plateau lies in the south. Shaba Plateau साउथ में है एंड एंगोला प्लेट्यू जो है वो साउथ वेस्ट में है. द कंट्री इज ऑल्सो नोन फॉर 4 लेक्स. कंट्री 4 लेक से प्रसिद्ध है. अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू एंड Tanganyika. It is a difficult word to pronounce, so all of you can say that Tanganyika. Now climate. How is the climate? The Democratic Republic of the Congo. Congo का Democratic Republic lies in the torrid zone. हमने इक्वेटोरियल कहाँ पे था? टॉरिड जोन में ही था. इक्वेटोरियल भी हमारा टॉरिड जोन में ही पड़ता था और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी टॉरिड जोन में. एंड हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ टॉरिड जोन. हमने टॉरिड जोन का क्लाइमेट हम पढ़ चुके हैं कि पूरे साल वहाँ पे गर्म, हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है. इन द प्रीवियस चैप्टर द रीजन हैज़ नो विंटर सीजन. वहाँ पे कोई विंटर सीजन नहीं होता. नाउ व्हाट इज वहाँ का वेजिटेशन कैसा है? वी नो डेट द रीजन रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल रीजन में पानी बरसता है. सो द कंट्री इज रिच इन वेज. इसलिए वहाँ की खेती वेजिटेशन अच्छा है. द फॉरेस्ट एरियाज आर डेंस. वहाँ का जो फॉरेस्ट एरियाज है बहुत ही घना जंगल है. एंड कंटेन अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट. वहाँ पे बहुत सारी ट्रीज और प्लांट्स हैं. देयर आर ग्रासेस. वहाँ पे कई सारी ग्रासेस हैं, कांटे, श्रब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड टॉल ट्रीज. बड़े बड़े ट्रीज हैं. द ट्रीज रीच इन हाइट ऑफ अबाउट 60 मीटर. आप सोचिए कि वहाँ के जंगल के जो ट्रीज हैं वो इतने 60 मीटर्स टॉल हैं. दीज ट्रीज ज्वाइन टू मेक अ कैनोपी. और ये ट्रीज मिलते हैं और एक कैनोपी टॉप पे बनता है. द कैनोपी ब्लॉक्स द सनलाइट एंड मेक्स द फॉरेस्ट डैम्प एंड. जो कैनोपी है वो सनलाइट के बीच में आ जाता है, जो सनलाइट डायरेक्ट नहीं आती है, और फॉरेस्ट जो है वो डैम्प और डार्क होता है. द ट्रीज शेड लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स. ट्रीज जो है वो पत्तियां शेड होती है अलग अलग टाइम पे ऑफ द ईयर. हेंस दीज फॉरेस्ट टेक ग्रीन. इसीलिए ये फॉरेस्ट ऑल ईयर राउंड हरा भरा ही रहता है. दस दे आर पॉपुलरली नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. इसीलिए उनको कहा जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो स्टूडेंट्स, today up till now we will study up to here. In the next class we'll continue with our chapter. Till then, thank you. Good morning students. We'll continue with our chapter that is of equatorial region. Now last class we read about the climate, vegetation and where it locates, all these things. Today we'll read about the animal life. The forest and grasslands, जो वहाँ के forest और grasslands हैं, make the Democratic Republic of the Congo. उन्होंने इस Democratic Republic of Congo को एक नेचुरल हैबिटेट बनाया है. वाइड वेराइटीज, कई सारे एनिमल्स हैं वहाँ पे, जैसे कि मंकीज, चिंपैंजीज, गोरिल्लाज एंड बाबून्स. स्विंग फ्रीली फ्रॉम ट्री टू. जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे अपने झूला झूलते हैं, कूदते हैं इधर उधर. एलिफेंट, हिप्पोज, लॉयंस, जिराफ एंड रिनोज आर सीन इन द मार्शलैंड. ये मार्शलैंड में पाए जाते हैं एनिमल्स. द रिवर्स एंड लेक्स आर होम्स ऑफ फिश. रिवर्स और लेक्स जो है फिश उनका घर है. एलिगेटर्स का, क्रोकोडाइल्स, ये सब रिवर और लेक में रहते हैं. मैनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड है. यहाँ पे कई प्रकार के स्नेक्स भी दिखने को मिलते हैं, जैसे एंटीलोप्स, जिराफ्स एंड लॉयंस लिव इन अ ग्रासलैंड. कलरफुल बर्ड्स, सुंदर सुंदर अलग अलग कलर्स की बर्ड्स और बटरफ्लाइज वहाँ पे दिखने को मिलते हैं कई सारे मात्रा में. बट इट इज़ वेरी सैड, लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि हंटिंग हैज़ रिड्यूस द नंबर ऑफ एनिमल. हंटिंग, वहाँ पे जब हंटिंग होती है एनिमल्स की, जिसकी वजह से वहाँ पे एनिमल्स का नंबर ऑफ एनिमल्स कम हो गए हैं और जिसकी वजह से एनिमल इंस्टिंक्ट हो गया है. द हिपोपोटामस इज वन सच एनिमल. ये इनमें से एक एनिमल है हिपोपोटामस, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन एंडेंजर्ड. द bonobos और पिग्मी चिंपैंजीज आर फाउंड ओनली इन दिस कंट्री. ये bonobos और पिग्मी चिंपैंजीज ही पाए जाते हैं. स्टूडेंट, देर इज अ वन फिलअप इन द क्विक रिविजन. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हैज अ which type of climate? It's a hot and wet tropical type of climate. Yes, a tropical type of climate. Yes. Now
नाउ कम टू द पीपल एंड कल्चर, वहाँ के लोग और वहाँ का कल्चर कैसा है. द पीपल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो बिलोंग टू डिफरेंट कल्चरल, वो लोग अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स के होते हैं. द रीजन इज थिनली पॉपुलेटेड, वहाँ का रीजन ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है. एंड पीपल आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट विलेज, और वो अलग अलग विलेजेस और टाउन्स में रहते हैं. सम पीपल हैव माइग्रेटेड टू टाउन, कुछ लोग ने अपने आप को टाउन्स में बसा के रखा है. टू वर्क इन माइंस, फैक्ट्रीज में वहाँ पे काम कर सकें, अर्न कर सकें. एंड ऑल्सो हैव ऑल्सो एडॉप्टेड वेस्टर्न लाइफ, और वहाँ की वेस्टर्न लाइफ स्टाइल भी उन्होंने अडॉप्ट कर ली. अ मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ज़्यादा पोर्शन पॉपुलेशन का लिव्स इन विलेजेस, वो ज़्यादातर बहुत पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन विलेज की है कॉन्गो रिवर बेसिन की. देयर हाउसेज आर थैच्ड हट्स, उनके हाउसेज जो हैं हट्स के बने हुए हैं विद पाम लीव्स से उन्होंने अपने घर हाउसेज बना रखे हैं. द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स व शॉर्ट स्ट्रेचर पिग्मीज, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं वो शॉर्ट स्ट्रेचर पिग्मीज की तरह हैं. दे आर वेरी शॉर्ट, मेजरिंग लेस देन 150 सेंटीमीटर, वो लोग बहुत ही छोटे पाए जाते हैं, 150 सेंटीमीटर हाइट से भी छोटे. दे लिव इन हट्स, वो हट्स में रहते हैं. स्टिल हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, आर स्टिल हंटर्स और फूड गैदरर्स अभी भी हैं. वेरी फ्यू पिग्मीज स्टिल रिमेन इन द इटूरी, कुछ बहुत ही कम पिग्मीज जो होते हैं वो यूटिरी फॉरेस्ट में रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में. अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्गोलीज आर बांटू निग्रोज, कई सारे कॉन्गोलीज हैं जिनको कहा जाता है बांटू निग्रोज. नाउ देयर इज वन मोर MCQ इज देयर. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज, विच लैंग्वेज इज देयर इन द कॉन्गो रिपब्लिक कॉन्गो? Okay, you have to see this one. So this is a multiple choice question. The official language of the Democratic Republic of the Congo is French. Lingala is the official language of military. Majority of the people practice some form of, कुछ लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं. एंड द रिमेनिंग स्टिल फॉलो ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीव्स एंड अदर रिलीजन्स. नाउ इकोनॉमी, वहाँ का पैसों के फिनेंशियली वहाँ पे कैसा है? द कंट्री हैज़ रिच नेचुरल डिपॉजिट, वहाँ पे ज़्यादा नेचुरल डिपॉजिट्स अच्छे हैं, मिनरल्स. एंड इज लीडिंग प्रोड्यूसर, और ये एक अच्छी लीडिंग प्रोड्यूसर इंडस्ट्रियल डायमंड्स में पाई जाती है. इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, वो वर्ल्ड कोबाल्ट की आधे से ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं. अदर मिनरल्स इंक्लूड कॉपर, और कुछ मिनरल्स हैं जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैंगनीज, टिन, जर्मानियम, यूरेनियम, रेडियम, आयरन और कोल एंड बॉक्साइट. माइनिंग इज द चीफ इंडस्ट्री, माइनिंग जो है वहाँ की चीफ इंडस्ट्री है. अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड सीमेंट, और कुछ जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे सीमेंट, पेपर, केमिकल, पेट्रोलियम, सोप एंड टेक्सटाइल्स पाए जाते हैं. वाटर इज एन एबिंडेंस हेयर, वाटर जो है वहाँ पे सही है, ना कम है ना ज़्यादा. इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉन्गो रिवर, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कॉन्गो रिवर से ली जाती है. द कॉन्गो रिवर एंड इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, और एक्सपोर्ट करा जाता है दूसरी कंट्रीज में. इन द पास्ट द यूरोपियंस एक्सप्लॉयटेड द नेचुरल रिसोर्सेज, और पिछले में द यूरोपियंस एक्सप्लॉयटेड द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री ऑफ देयर ओन बेनिफिट, कंट्री की रिसोर्सेज अब वो अपने खुद के बेनिफिट्स में पाई जाती है. कीपिंग इट अंडर फॉरेन रूल, और ये फॉरेन रूल में रहने से में फॉर मैनी ईयर्स, कई सारे साल फॉरेन रूल्स में रहे. इन 1960 द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, और 1960 में ये कंट्री अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हुई. बट स्टिल पीपल हैव बीन अनेबल टू फुली यूटिलाइज, लेकिन अभी भी लोग जो हैं वहाँ के पीपल जो हैं वो यूटिलाइज नहीं करते हैं अपना वास्ट मिनरल रिसोर्सेज को पूरी तरीके से. इंडस्ट्रीज आर नॉट वेल डेवलप्ड, वहाँ पे अभी भी इंडस्ट्रीज अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलप्ड नहीं है. एंड आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटीरियल्स. मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड, कई एक्सपोर्ट हो जाते हैं मिनरल्स वहाँ के. नाउ कम टू द ऑक्यूपेशन. फार्मिंग इज अ मेजर ऑक्यूपेशन, वहाँ पे वो लोग अपने घर, अपनी फैमिली कैसे चलाते, कैसे अर्न करते हैं. लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, कई सारे वहाँ के फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, वो साफ किए गए फार्मिंग के लिए. द चीफ क्रॉप्स, वहाँ का चीफ क्रॉप जो है वो कल्टीवेट किया गया. वहाँ का चीफ क्रॉप्स राइस, मेज एंड कसावा.
कसावा इज अ रूट, ये कसावा एक रूट है, जड़ है, दैट इज ड्राइड, जो सूखी हुई होती है, एंड पाउंडेड इनटू फ्लोर, और वो किसी मतलब जैसे आटे में या किसी भी गीले फ्लोर में डाला जाता है, विच इज यूज टू मेक ब्रेड, इससे हम वो ब्रेड बनती है। वेराइटीज ऑफ कैश क्रॉप सच एज कोको, कई सारे कैश क्रॉप्स हैं वहाँ पे, जैसे कोको, कॉफी, टोबैको, कॉटन, रबर एंड ऑयल पाम आर ऑल्सो ग्रोन बाय द फार्मर्स, वहाँ के फार्मर्स ये सब भी उगाते हैं, एंड आर एक्सपोर्टेड टू अदर, और फिर दूसरी कंट्रीज में वो भेजते भी हैं ना। वो कैसे भेजते हैं? कम टू द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर मेजर प्रॉब्लम्स इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है कॉन्गो में। द इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड डीप इनसाइड द कंट्री, इंडस्ट्रीज जो है वो कंट्री के अंदर में बहुत ज़्यादा अंदर तक बसी हुई हैं, विच मेक्स इट डिफिकल्ट, जो कि उनको मुश्किल पैदा करती हैं फॉर रोड्स एंड रेलवेज के लिए टू बी बिल्ट। माइनिंग सेंटर्स आर कनेक्टेड, वहाँ पे माइनिंग सेंटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं बाय रेलवेज एंड रोड्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी के जरिए, जहाज के जरिए वो अपना ट्रांसपोर्ट ले जाते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज बिकमिंग पॉपुलर। नाउ सिटीज, अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 1/3 टोटल पॉपुलेशन से 1/3 में जो है वो टाउन्स और सिटीज में रहते हैं। द कैपिटल सिटी किंशासा इज द लार्जेस्ट सिटी, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है, मोर देन 1 मिलियन। सम ऑफ द अदर सिटीज़, कुछ दूसरी सिटीज़ हैं जैसे कि लुम्बाशी, मबूजी माई, किसानगानी एंड कानंगा। लुबम्बाशी इज रिच इन मिनरल्स, ये जो लुबम्बाशी है वहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। अदर बिग सिटीज़ लाइक कावंगा, किसानगावी एंड मटादी, ये पोर्ट सिटीज़ होते हैं। कंज्यूमर गुड्स सच एज शूज़, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं जैसे कि शूज़, टेक्सटाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द सिटीज़ ऑफ किंशासा एंड लुम्बाशी। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज़ वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, वो वहाँ की प्राकृतिक रिसोर्स से ज़्यादा वहाँ पे है। एंड विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट, और इनके तरीके, इनके डेवलपमेंट से प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बनाया जाता है, इट कैन बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट नेशंस इन द कॉन्टिनेंट, ये एक रिचेस्ट कॉन्टिनेंट भी बन सकता है। सो स्टूडेंट, द चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड एंड दीज आर द न्यू वर्ड्स आई बाय मिस्टेक आई हैव written at the last of the chapter, new words which I will give you exercise in the next class. I will give you multiple choice you have to do in the book, and other fill up and question answers you have to do in the copy, and last I have given the new word. These are the new words you have to write in your copy. So till then, be at home, be safe. Thank you.